Good morning, student. I am Dr. N. K. Pachori, PGT Commerce of Kendriya Vidyalaya CMM Jabalpur. Today, I am presenting before you Accountancy Part 2, of which the unit is Financial Statement Analysis, under which today our topic will be Methods of Financial Analysis, that is common size statement. Meaning of common size statement. The common size statement, balance sheet and income statement are shown in an analytical percentage. The figure are shown as percentage of total assets, or you can say total liabilities, or if you are preparing a statement of profit and loss account on common size base, then total sales. The total assets are taken as 100 in a balance sheet, and different assets and liabilities expressed as a percentage of total. Similarly, various liabilities are also taken as a part of total liabilities. तो जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो याद रखें टोटल एसेट्स को 100 लेना है और इंडिविजुअल आइटम्स का उसके रिलेशन में परसेंटेज निकालना है। यानी कॉमन साइज बैलेंस शीट में फार्मूला चलेगा individual item of balance sheet divided by total assets into 100. These statements are also known as component percentage or 100 percentage. Because every individual item is stated as a percentage of the total 100. The shortcoming in comparative statement and 10 percentage, where percentage in items could not be compared with the total, have been covered up. तो यहाँ पर तुलना बेहतर हो जाती है क्योंकि हम हर एक चीज को टोटल से यानी 100% से कंपेयर कर रहे होते हैं। ये बात कंपैरेटिव स्टेटमेंट और ट्रेंड परसेंटेज स्टेटमेंट में नहीं देखने को मिलती। The analyst is able to assess the figure in relation to total value under common size statement. The common size statement may be prepared in a following way. Total asset, the total of asset or liabilities are taken as 100. The individual asset are expressed as a percentage of total assets. तो क्योंकि हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हैं तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने में टोटल एसेट को अथवा टोटल लायबिलिटीज को 100 लेंगे 100% और इंडिविजुअल एसेट और लायबिलिटीज को उसके कंपैरिजन में परसेंटेज बनाएंगे। The individual assets are as expressed as a percentage of total asset, that is 100, and different liabilities are calculated in relation to total liabilities. For example, if total assets are 5 lakh and inventory values is 50, then it will be 10%. कैसे? 50 divided by 5 lakh into 100, तो 10% आ जाएगा।
type of common size statement. First one, common size balance sheet. A statement in which balance sheet items are expressed as the ratio of each asset to total asset and in the ratio of each liability expressed as the total liabilities is called common size balance sheet. तो जब आप टोटल एसेट के रिलेशन में या टोटल लायबिलिटीज़ के रिलेशन में हर एक आइटम को देख रहे होंगे तो आप कहेंगे कि हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हैं। देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट का इलस्ट्रेशन 1। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। आइटम्स दिए हुए हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। फिगर्स दिए हुए हैं 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020। अब इसका प्रेजेंटेशन देखिए। सॉल्यूशन, कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19 and 20। तो पहले 3 कॉलम आपको क्वेश्चन से ही भरने हैं, जैसे कंपैरेटिव में भरा करते थे। सेम हेडिंग ले लेनी है। फॉर्मेट बैलेंस शीट का आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज टॉप हेडिंग होती है, शेयर होल्डर फंड सेकेंड हेडिंग होती है। शेयर होल्डर फंड में अमाउंट दिया है 12 लाख, 18 लाख। नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 6 लाख, 6 लाख। करंट लायबिलिटीज 2 लाख, 6 लाख। टोटल 20 लाख, 30 लाख। टोटल लायबिलिटीज 20 लाख, 30 लाख। देन एसेट्स दी हुई हैं, नॉन करंट एसेट्स 14 लाख, 21 लाख। करंट एसेट्स 6 लाख, 9 लाख। अब इनका कॉमन परसेंटेज निकालना है। तो जैसे अभी थ्योरी में बताया गया था कि टोटल ऑफ एसेट्स या टोटल ऑफ लायबिलिटीज़ को 100 लेंगे। तो देखिए जहाँ पर टोटल लगा है वहाँ 100% है। लायबिलिटीज़ में भी 100% और एसेट्स में भी 100%। क्यों? क्योंकि टोटल को हमने 100 लिया है। अब परसेंटेज निकालेंगे 19 के अलग और 20 के अलग। तो कैसे निकालना है? इंडिविजुअल को लेना है। जब आप 19 का कंपेयर करेंगे तो 19 का टोटल 100 लेकर चलेंगे, और जब 20 का करेंगे तो 20 का टोटल 100 लेकर चलेंगे। देखिए कैसे निकालना है परसेंटेज। 12 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख into 100। तो परसेंटेज आ जाएगा 60। सेकेंड आइटम का 6 लाख डिवाइडेड बाई अगेन 20 लाख
into 100, तो परसेंटेज आ जाएगा 30। देन करंट लायबिलिटी 20 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, into 100, परसेंटेज आ जाएगा 10। टोटल का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 20 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, तो 100 आना ही है। देन करंट एसेट 14 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, तो परसेंटेज आ जाएगा 70। करंट एसेट 6 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, तो परसेंटेज आ जाएगा 30। टोटल का गेन 100। तो इस तरह से 19 के परसेंटेज सारे निकाल लेने हैं, और सेम तरीके से अब 20 के परसेंटेज निकाले जाएंगे। जब 20 का परसेंटेज निकालेंगे तो 20 का इंडिविजुअल आइटम और 20 का ही टोटल लेना है। 18 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100, परसेंटेज आपका 60 आ जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज लेंगे तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100, तो परसेंटेज आपका 20 आ जाएगा। अगेन करंट लायबिलिटी का 6 लाख डिवाइडेड बाई 30, तो उसका भी 20% आएगा। टोटल का 30 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100, तो 100% आना है। नॉन करंट एसेट 2020 के 21 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100, परसेंटेज 70 आ जाएगा। करंट एसेट्स 9 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख
into 100, तो परसेंटेज आपका 30 आ जाएगा। टोटल का अगेन 30 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख तो 100। तो इस तरह से आपने देखा कि जब कॉमन साइज में परसेंटेज निकाला जाता है तो टोटल अपान में आता है और इंडिविजुअल आइटम का अमाउंट आप ऊपर लिखते हो। न्यूमरेटर में इंडिविजुअल आइटम एंड डिनोमिनेटर में टोटल इनटू 100। तो ये आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट था। नाउ इलस्ट्रेशन 2, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सब हेडिंग शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, देन करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, टोटल लायबिलिटीज हो गया। इसमें 2020 का फिगर पहले है और 2021 का फिगर बाद में है। 2019 बाद में दिया है, 20 पहले दिया है। अभी ये लायबिलिटी साइड का ये आइटम थे। अब एसेट साइड्स के आइटम देखिए, नॉन करंट एसेट यानी फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिस्टमैटिक दिया हुआ है। 2020 पहले है, 2019 बाद में दिया है। अब प्रेजेंटेशन देखिए, कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो पहले 3 कॉलम आपको क्वेश्चन से ही भरने हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ये आपको क्वेश्चन से एज इट इज भरने हैं। हाँ, आप अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं 19 को पहले और 20 को बाद में, ताकि आपके परसेंटेज 19 के कंपैरिजन में 20 के इंक्रीज डिक्रीज साफ दिखे। तो लायबिलिटी साइड का प्रेजेंटेशन है, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड टोटल। 19 को क्वेश्चन से पहले उठा लिया, 20 को बाद में रख दिया, जबकि क्वेश्चन में 20 पहले था, 19 बाद में था। परसेंटेज सेम तरीके से निकालना है जैसे अभी आपको बताया गया था, इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल 100 आएगा। जैसे 19 के परसेंटेज निकालेंगे तो 19 का टोटल लेना है 60 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इंटू 100। तो परसेंटेज आ जाएगा आपका 60। देन सेकंड का रिजर्व एंड सरप्लस का 8 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़
इंटू 100, तो परसेंटेज आ जाएगा आपका, अभी 60 आया था, 8%। नॉन करंट लायबिलिटीज का सेम तरीके से 20 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इंटू 100, तो 20%। करंट लायबिलिटीज का 12 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़, तो 12%। टोटल लगाएंगे 100%। अब वैसे देखा जाए तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इंटू 100, तो 100% ही आ जाएगा। अब देखिए आप 2020 के परसेंटेज, 80 लाख, 80 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़, 20 लाख इंटू 100, तो परसेंटेज 66.67। ये शेयर कैपिटल का परसेंटेज था। अब रिजर्व एंड सरप्लस 12 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़, 20 लाख इंटू 100, 10% आ जाएगा 12 से। देन नॉन करंट लायबिलिटीज का 24 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़, 20 लाख इंटू 100, परसेंटेज 20। दैट शॉर्ट टर्म बोरोइंग का 4 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़, 20 लाख इंटू 100, तो परसेंटेज आ जाएगा 3.33। टोटल का 1 करोड़ 20 डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 20 इंटू 100, तो 100%। तो इस तरह से आपने देखा लायबिलिटी साइड आपका पूरा हुआ। अब एसेट साइड, एसेट साइड भी सेम तरीके से आपको परसेंटेज निकालना है। 60 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़, 60 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इंटू 100, तो 60% आ जाएगा। इंटेंजिबल एसेट 12 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इंटू 100, 12% आ गया। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 20 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इंटू 100, तो 20% आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इंटू 100, तो 8% आ गया।
टोटल का गेन 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इंटू 100%। तो इस तरह से आपने 19 के परसेंटेज निकाल लिए। अब 20 के भी सेम तरीके से निकालना है। 80 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 20 इंटू 100, तो 66.67 आ जाएगा। सेम तरीके से 4 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 20 इंटू 100, तो 3.33। 24 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, 20%। 12 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 20, तो 10%। टोटल का 1 करोड़ 20 डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 20, 100%। तो इस तरह से आपके 2020 के भी सारे परसेंटेज आ जाएंगे। तो आपने देखा कॉमन साइज स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना काफ़ी आसान है। इंडिविजुअल आइटम को टोटल से डिवाइड करना है, इंटू 100 करते जाना है। यदि 19 के आइटम ले रहे हैं तो 19 में ही लिखेंगे परसेंटेज, और 20 के आइटम ले रहे हैं तो 20 में ही लिखेंगे परसेंटेज। कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द आइटम इन एन income statement can be shown as percentage of sales, that is revenue from operation. To show the relation of each item to the sales, a significant relationship can be established between items of income statement and volume of revenue from operation. The increase in revenue from operation will certainly increase selling expenses एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल एक्सपेंस। यदि सेल बढ़ रही है तो सेलिंग एक्सपेंस ही बढ़ेंगे, बाकी एक्सपेंस का बढ़ना ज़रूरी नहीं है, बढ़ भी सकते हैं नहीं भी। इन केस द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीजेस टू कंसिडरेबल एक्सटेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मे गो अप। इन केस द सेल्स आर डिक्लाइनिंग, द सेलिंग एक्सपेंसेस शुड बी रिड्यूस्ड एट वंस. So a relationship is established between sales and other items in an income statement, and this relationship is helpful in evaluating operational activities of the enterprise. तो जब आप कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होंगे तो इंडिविजुअल आइटम्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स के कंपैरिजन में प्रेजेंट करेंगे। यानी यहाँ पर आप यदि फार्मूला डेवलप करें तो फार्मूला बनता है इंडिविजुअल आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। देखें इलस्ट्रेशन 3। प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, other income, purchase of stock and trade, change in inventories of stock and trade, other expenses, and rate of income tax. It is given in the question. The first one, you have to present all these items as per the format provided by the Indian Companies Act 1956 Schedule 6 Part 1. तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,50,000 19 का और 10,00,000 2020 का। ये 3 कॉलम आप क्वेश्चन से एज इट इज बनाएंगे, 1, 2 and 3।
ये 3 कॉलम आपको क्वेश्चन से एज इट इज़ बनाने हैं, लेकिन फॉर्मेट में। टॉप पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एड अदर इनकम 75,000 एंड 1 लाख, तो टोटल रेवेन्यू हुआ 8,25,000 एंड 11 लाख। अब कॉमन साइज परसेंटेज आप निकालेंगे तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही लेना है। जैसे 2019 के परसेंटेज आप निकाल रहे होंगे, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 7,50,000 डिवाइडेड बाई 7,50,000 इंटू 100, तो परसेंटेज 100 आ जाएगा। 75 कट जाएंगे। देन अदर इनकम का परसेंटेज 75,000 डिवाइडेड बाई 7,50,000 इंटू 100, 10%। टोटल 110% हो गया। यदि परसेंटेज निकालना है तो 8,25,000 डिवाइडेड बाई 7,50,000 इंटू 100 करेंगे, 110 आ जाएगा। सेम तरीके से 2020 के परसेंटेज निकालेंगे। सेल्स का 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, तो 100% होगा। अब इनकम का परसेंटेज निकाल लेंगे और टोटल का निकाल लेंगे। देन एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड 6 लाख डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। चेंज इन इन्वेंटरीज 10,000 डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। आपके परसेंटेज आते जाएंगे। अदर एक्सपेंसेस 7,500 डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 7,50,000 था नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हर एक आइटम को 7,50,000 से डिवाइड करना है। टोटल एक्सपेंसेस 6,17,500 डिवाइडेड बाई 7,50,000 इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगा 82.33। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया? टोटल इनकम से टोटल रेवेन्यू को माइनस किया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,07,000 बचा। इनकम टैक्स 50% था, जस्ट हाफ हो गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को माइनस करके 1,03,750 आपका बचा। इनके परसेंटेज भी उसी के क्रम में निकालना है। 2,07,000 डिवाइडेड बाई 7,50,000 इंटू 100, 1,03,000 डिवाइडेड बाई 750, 1,03,750 डिवाइडेड बाई 7,50,000 इंटू 100। तो इस तरह से आपके ये सारे परसेंटेज आते जाएंगे। जब 2020 में जाएंगे तो 2020 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे। $10 लाख था, 10 लाख से हर एक को डिवाइड करेंगे। $7,50,000 डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 50,000 डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 10,000 डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 7,10,000 डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 3,90,000 डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन,
1,95,000 डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस तरह से आपके ये परसेंटेज आते जाएंगे 74, 5, 1, 71, 39, 19.50, 19.50, ये आपके परसेंटेज निकलते आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो इंडिविजुअल आइटम को नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना है। इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन into 100. Illustration 4. Prepare common size statement of profit and loss account from the following information. Revenue from operation 10 lakh, 8 lakh, other income 40,000, 20,000, cost of material consumed 6 lakh, 4 lakh, employees benefit expenses 1 lakh 20, 80, other expenses 1 lakh 80, 1 lakh 40. अब इसको प्रेजेंट वैसे ही करेंगे एज पर शेड्यूल 6। टॉप पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, 10 लाख, ऐड अदर इनकम तो आपकी टोटल इनकम। अब इनके परसेंटेज कैसे निकालेंगे तो वही 8 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100। Cost of material consumed 4 lakh, 6 lakh, employees benefit expense 80,000, 120,000, other expenses 60,000, 80,000, तो आ गया आपके टोटल एक्सपेंसेस। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। तो जो टोटल था इनकम का, रेवेन्यू का, उससे टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 2,80,000, 2,40,000। लेस टैक्स किया तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इस तरह से ये जो परसेंटेज हैं आपके, ये आपके वैसे ही निकलेंगे। 4 लाख डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू, 80,000 डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू, 60,000 डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू, तो आपके ये परसेंटेज आ जाएंगे 50%, 10%, 7.5%, टोटल का 67.50, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू 35%, टैक्स डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू 10%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू 25%। सेम तरीके से जब 2020 के निकालोगे तो वहाँ भी आपको यही करना है। 6 लाख डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू ऑफ 2020, 1,20,000 डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू, 80,000 डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू, 8 लाख डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू, 2,40,000 डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख था, 10 लाख से सबको डिवाइड करेंगे। 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख तो 10%, 1,40,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख तो 14%। तो इस तरह से आपके ये सारे परसेंटेज आते जाएंगे। Now the topic is over. Some assignment to you. Some questions are given. Write down in your notebook copy, and 2 questions also given. So find out the percentage. If you are preparing common size statement, then find out the percentage in relation to revenue from operation. If you are preparing balance sheet, then find out the percentage in relation to total asset. Okay, thank you. Have a great day.